بھائیوں کی بینک کے ذریعے سے قرضہ اسکیم کو متعارف کرا سکیں اور ان کی جتنی ممکن مدد ہو سکتی ہے وہ کر سکیں۔ بیسیکلی کیونکہ میرا اپنا تعلق بھی کسان گھرانے سے ہے تو میں کسانوں کے مسائل کو بہت اچھی طرح سے سمجھتا ہوں، اور اس وقت جو دنیا جس تیزی سے ترقی کر رہی ہے، اگر ہم نے اپنی جو پیداواری صلاحیت ہے اس کو نہ بڑھایا اور جدید پیداواری طریقے نہ اپنائے تو ہم تو پہلے دنیا سے بہت پیچھے ہیں، پھر مزید پیچھے رہ جائیں گے۔ اس کے لیے حکومت پاکستان کی ہدایات کے مطابق، اسٹیٹ بینک کی ہدایات کے مطابق تمام بینک کسان بھائیوں کے لیے مختلف قرضہ ساز اسکیمس پرووائڈ کر رہے ہیں۔ تو میں آپ کو اپنی نیشنل بینک آف پاکستان کی جو مختلف قرضہ اسکیمیں ہیں ان کا تعارف کرانا چاہوں گا۔ نیشنل بینک آف پاکستان الحمدللہ پورے پاکستان میں لاکھوں کسانوں کو یہ قرضہ زرعی قرضہ فراہم کر رہا ہے، جس سے کسان اپنی پیداواری صلاحیت کو بڑھاتے ہیں، جس سے نہ صرف وہ کسان کا وہ گھرانہ خوشحال ہوتا ہے بلکہ ہمارا ملک بھی ترقی کرتا ہے۔ اس کے لیے ہماری جو بہت اہم اسکیمز ہیں، ویسے تو ہمارے پاس ٹوٹل 22 اسکیمز ہیں، 22 اس سے بھی زیادہ، جن کے لیے ہم قرضہ دیتے ہیں۔ سب سے جو اہم اسکیم جس میں ہم ٹریکٹر فنانس کرتے ہیں وہ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہمارے کسان بھائی کے پاس 5 ایکڑ کی زرعی پاس بک ہونی چاہیے۔ اگر 5 ایکڑ کی زرعی پاس بک ہے تو وہ نیشنل بینک آف پاکستان کی کسی بھی برانچ سے قرضہ لے سکتا ہے۔ ابھی ہم نے آپ کو یہاں پہ بروشرز بھی تمام ٹیبلس پہ رکھتی ہیں اور ہم انڈیویجول بروشر بھی دے رہے ہیں، اس میں ہمارے فون نمبر لکھے ہوئے ہیں۔ تو آپ 5 ایکڑ کی پاس بک لے کر کے کسی بھی ہماری برانچ میں جائیں یا ہمارے ریجنل آفس میں آئیں، ریجنل آفس بہاولپور میں، تو آپ ٹریکٹر کے قرضے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ نہ صرف ٹریکٹر کا قرضہ لے سکتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ امپلیمنٹس بھی لے سکتے ہیں، جیسے ٹرالی ہے، روٹاویٹر ہے، اسپرے مشین ہے، اس کے علاوہ اور جتنے بھی اس ٹریکٹر کے ساتھ چلنے والے امپلیمنٹس ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ٹیوبل اور ٹربائن کے لیے بھی آپ قرضہ لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری اس کی ٹریکٹرس کی اسکیم اور امپلیمنٹس کی اسکیم ہے قرضہ کی۔ دوسری جو اہم اسکیم ہے وہ ہے کھاد بیج کے لیے۔ کھاد بیج کے لیے ہم نیشنل بینک آف پاکستان قرضہ فراہم کرتا ہے 3 ایکڑ 1,05,000 تک۔ اس میں آپ کی اپنی زمین کا زیادہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ مثلا اگر آپ کے پاس اپنی 10 ایکڑ زمین ہے اور 20 ایکڑ آپ نے لیز لینڈ ٹھیکے پہ لی ہوئی ہے تو آپ کو 30 ایکڑ پر تقریباً 30 لاکھ سے زیادہ قرضہ مل جائے گا۔ وہ 3 سال کا قرضہ ہوتا ہے، آپ نے ہر سال صرف مارک اپ پے کرنا ہے اور وہ قرضہ ریوارڈ ہو جاتا ہے، اور تیسرے سال میں بھی آپ نے اس کو رینیو کروانا ہے، پھر وہ اگلے مزید 3 سال کے لیے آپ کو وہ قرضہ مل جاتا ہے۔ تو اوور آل اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ نے صرف ہر سال مارک اپ پہ اس کا جو انٹرسٹ ہے وہ پے کرنا ہے، صرف ٹائم پہ آپ مارک اپ پے کریں تو آپ کو پوری رقم جمع کرانے کی ضرورت نہیں کبھی بھی پڑے گی، اور پھر 3 سال بعد وہ لمٹ آپ کی دوبارہ سینکشن ہو جائے گی۔ اور اس میں آپ کو یہ بھی فائدہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ایکسیس منی ہے، مثلا آپ کا کوئی سا ڈیری کا کاروبار ہے یا کوئی بھی آپ کی فصل آ گئی ہے، آپ اپنے اس لون اکاؤنٹ میں پیسے جمع کرا دیں گے تو آپ کو وہ اتنے دنوں کا مارک اپ پڑنا بند ہو جائے گا۔ جب آپ کو دوبارہ ضرورت پڑے گی آپ چیک کر لیں گے، پیسے پھر نکلوا دیں گے لون اکاؤنٹ سے، مینس کہ وہ آپ کی ایک لمٹ ہوگی، لون اکاؤنٹ میں پیسے موجود ہوں گے، جتنے پیسوں کی آپ کو ضرورت پڑے آپ چیک کر کے نکلوا لیں۔ جب آپ کے پاس پیسے آ جائیں کسی بھی سورس سے کہ وہ آپ فصل آ گئی ہے، آپ نے فصل بیچی ہے، آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ اسی لون اکاؤنٹ میں جمع کرا دیں۔ اس کے بعد جو ہی آپ کو دوبارہ کھاد بیج کے لیے ضرورت پڑے، ڈیزل کے لیے ضرورت پڑے، آپ چیک کاٹیں پیسے لے لیں، اسی وقت اس کی کوئی پروسیسنگ فیس نہیں ہے، کوئی چارجز نہیں ہے، اور آپ نے صرف اپنا جیسے آپ اپنا ایک عام کرنٹ اکاؤنٹ استعمال کرتے ہیں یا سیونگ اکاؤنٹ استعمال کرتے ہیں، اسی طریقے سے آپ نے لون اکاؤنٹ استعمال کرنا ہے۔ یہ سب سے ہماری پاپولر اسکیم یہی ہے، اس میں ہم نے 100 ارب سے زیادہ کی فنانسنگ پورے پاکستان میں کی ہوئی ہے۔ اس کے بعد پھر ہماری نیکسٹ اسکیم ہے فارمنگ کے لیے، ڈیری فارمنگ کے لیے۔
डेयरी फार्मिंग के लिए हम जानवर खरीदने के लिए भी कर्जा देते हैं और जानवर को पालने के लिए उनका आपने भंडा लेना है, उनके नौकर्स की तनख्वाहें हैं, इसके अलावा उसके वैक्सीनेशन के चार्जेस हैं जिसकी आपको ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए हम अलहदा लिमिट बना देते हैं आपको, जो आपको कभी कभी ज़रूरत पड़ती है पैसों की, आपने वैक्सीनेशन की ज़रूरत पड़ गई, आपने वैक्सीनेशन करवाई, आपने बंडा खरीदना है, बंडे के लिए सैलरी खरीदनी है, आपने उसके लिए पैसे निकाल लिए, और जो ही आपके पास दूध बेचने से या जानवर बेचने से पैसे आए आपने उस लिमिट में दोबारा जमा करा दिए, फिर दोबारा जब आपको ज़रूरत पड़ी आपने चेक काटा और पैसे फिर ले लिए, वो भी इसी तरह की 3 साल की लिमिट होती है। और जानवर खरीदने के लिए आपको हम 5 साल के लिए कर्जा देते हैं, वो आपने हाफ ईयरली यानी 6 महीने की इंस्टॉलमेंट की बुनियाद पर हमें वो कर्जा 5 साल में वापस करना होता है। अगर आपके पास अपना शेड मौजूद है और हम आपको जानवर खरीदने के लिए भी कर्जा देते हैं और उन जानवरों को पालने के लिए भी कर्जा देते हैं, तो मीन्स के सिर्फ अगर आपके पास शेड है अपनी ज़मीन में तो आप ये दोनों सूरतें हमसे ले सकते हैं। और ये तमाम हमारी जितनी भी कर्जा स्कीमें हैं इसका मैक्सिमम जो 15 दिन की प्रोसेसिंग है, 15 दिन भी ज़्यादा हम कोशिश करते हैं अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, पासबुक है, बाकी चीज़ें कसरा करदाबरी और जो रेवेन्यू के डॉक्यूमेंट चाहिए वो आप ले आते हैं, तो हम 2 से 3 दिन 4 दिन में कर्जा सेंक्शन करके आपके अकाउंट में डाल देते हैं पैसे, फिर आप चेक काटेंगे अपने पैसे निकलवाते रहेंगे, जमा कराते रहेंगे। हम आपको गाइडलाइन भी देते रहते हैं कि आप इस तरह से अपने अकाउंट को इस्तेमाल करें ताकि आपको मार्कअप की जो अमाउंट है वो कम से कम देनी पड़े। अगर आप अपना रनिंग अकाउंट चलाएंगे, जो भी आपके पास भले वो डेयरी का रनिंग अकाउंट हो या खाद बीज का प्रोटेक्शन लोन का रनिंग अकाउंट हो, लोन अकाउंट हो, तो आपके पास जो ही पैसे आएंगे आप वापस जमा करवा देंगे तो आपको फिर उतने दिनों का मार्कअप नहीं लगेगा, फिर आपको साल एंड पे बहुत थोड़ा मार्कअप देना पड़ेगा। हमारा मकसद नेशनल बैंक एक कौमी बैंक है, इसका मकसद मार्कअप इकट्ठा करना नहीं है, मेन मकसद हमारा ये है कि हम किसान भाइयों को ये सारी सहूलतें दें ताकि वो अपनी पैदावारी सलाहियत को बढ़ाएं। फिर हमारा मुल्क उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक हम फी एकड़ पैदावार ना बढ़ाएं। इस वक्त भी आप देखें हमारी जो गन्नम की पैदावार है फी एकड़, धान की पैदावार है, मेज की मकई की पैदावार फी एकड़ है, इसके अलावा काटन की पैदावार है, ये सूरजमुखी की, ये सारी हमारी फी एकड़ पैदावार एडवांस कंट्रीज जो डेवलप कंट्रीज हैं, जापान है, अमेरिका है, यूरोप है, उनसे बहुत कम है। वहाँ ये पैदावार तकरीबन हमसे 1.5 गुना या इससे भी ज़्यादा है। वो जदीद बीज इस्तेमाल करते हैं, आबादी के पानी लगाने के जदीद तरीके इस्तेमाल करते हैं जिससे पानी भी कम इस्तेमाल होता है और उनकी पैदावार भी बढ़ती है। तो असल मकसद यही है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, नेशनल बैंक का जो एक कौमी बैंक है, गवर्नमेंट का बैंक है, कि हम अपने किसान भाइयों की वो फी एकड़ पैदावार बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उनकी हेल्प करें, जिससे वो घराना भी खुशहाल होगा, वो किसान भाई का वो घराना भी खुशहाल होगा और मुल्क और कौम भी तरक्की करेगी। अगर हमारे पास आज इस साल बदकिस्मती के साथ कि हमें अब गन्ना भी बाहर से मंगवानी पड़ती है, जबकि आप सबको पता है कि पाकिस्तान जो है वो गन्ना एक्सपोर्ट करने वाला, बाहर भेजने वाला मुल्क था, लेकिन इस साल भी 30 लाख टन गन्ना का टेंडर अभी इन्होंने दिया जो बाहर से मंगवानी पड़ती है। तो ये सूरत हाल हमारे लिए काफ़ी परेशान कुन सूरत हाल है। हमने बीन का कौम, बीन का नेशन सोचना है, अपनी ज़ात के लिए भी सोचना। अगर हमने इस मुल्क और कौम को तरक्की देनी है तो हमारी सोच एक कौमी सोच होगी कि हम अपनी पैदावार बढ़ाएं ताकि हमारे पास सरप्लस हो, अपनी ज़ात के ज़रूरत को निकाल कर, अपने घराने की ज़रूरत को निकाल कर अदाफी गन्नम होगी तो हम मार्केट में बेचेंगे, जिससे हमारे जो दूसरे जो गन्नम पर नहीं करते मजदूर तबका है, कारोबारी लोग हैं, वो उसको खरीदेंगे, बजाय इसके कि हम यूक्रेन से, रशिया से या किसी दूसरे मुल्क से 5,000-6,000 का मन गन्नम इम्पोर्ट करें, तो उससे बेहतर है कि हम अपनी पैदावारी सलाहियत को बढ़ाएं। इसी तरह सूरजमुखी है, ये मेज है, मकई की फसल है, धान की फसल और इस तरह बहुत सारी जितनी फसलें हैं, तो ये सारी स्कीमें जो करते की हैं ये सब आपके लिए हैं। अब आपका ये काम है कि आप अपने डॉक्यूमेंट बनवाएं या अभी नहीं भी डॉक्यूमेंट बनवाए तो आप हमारी ब्रांच में विजिट
ऑफिस में विजिट करें, वहाँ पे हमारे एग्री फील्ड ऑफिसर्स बैठे हुए हैं। मैं खुद भी वहाँ होता हूँ, अब्दुल जब्बार मेरा नाम है। आप चले मेरा नंबर भी शेयर कर लें साथ, मैं आपको नंबर नोट करवा देता हूँ। आप किसी भी वक्त तशरीफ ले आएँ, इंशाल्लाह हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे और आपको गाइड करेंगे कि आपके पास जितनी ज़मीन है और या आपके पास जितनी ठेके पे ज़मीन है उनको मिला करके हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा कितना कर्जा दे सकते हैं जिससे आपकी मदद हो सके, आपकी हेल्प हो सके और आपको पैदावारी कर्जा पैदावारी सलाहियत को बढ़ाएँ, 20 एकड़ पैदावारी सलाहियत को आप बढ़ाएँ। इसके अलावा हमारे पास इसके अलावा बहुत सारी स्कीमें हैं। हमने ये इसके पोल्ट्री फार्म्स के लिए कर्जा, शेड्स के लिए कर्जा देते हैं, शेड बनाने के लिए भी और शेड को चलाने के लिए भी। इस वजह की हमारे पास जलमान में, बनोट में और ये समा सखा के 4 बड़े पोल्ट्री फार्म हैं जिनको हमने 1-1 करोड़ रुपया कर्जा दिया हुआ है उस शेड को चलाने के लिए। और इसके अलावा फिशरी, मछली पालने के लिए, मछली फार्म के लिए हम कर्जा फराहम करते हैं, और बकरियों के फार्म के लिए हम कर्जा फराहम करते हैं, भेड़ों के फार्म के लिए कर्जा फराहम करते हैं, और कुर्बानी के जो बड़े जानवर हैं कैटल फार्म उसके लिए हम कर्जा फराहम करते हैं। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई ज़रूरत इसके अलावा भी आ जाती है तो हम वो भी कोई ना कोई राह निकाल लेते हैं। मतलब ये कि आपने कोई हार्वेस्टर जो है वो इम्पोर्ट करना है बाहर से, कोई मशीनरी बाहर से बड़े ज़मींदार ने इम्पोर्ट करनी है, अब उसकी भी राह निकाल के आपको वो कर्जा फराहम कर सकते हैं। मैंने देखा ये जहांगीर तरीन के फार्म पर मैंने विजिट किया तो पाकिस्तान में वो वाहिद फार्म है जहांगीर तरीन का जहाँ पे गन्ना भी जो है वो मशीन से काटा जाता है, मशीन से गन्ना काट के फिर उसके छोटे छोटे टुकड़े करके ड्रिप में वो ट्राली में ऑटोमेटिकली लोड होता है और वहाँ से फिर वो बंकर में जो बड़े ट्रालर में उनकी गिर का गन्ना पहुँचता है। ये जलमान के इलाके चुलिस्तान में उनके पास 7,000 एकड़ की ज़मीन है, फौजियों की ज़मीन है और वहाँ पे इतनी जदीद मशीनरी काम कर रही जो ठेके पे ली हुई ज़मीन, जिससे जो आप लोग मुझे यकीन है, मैंने जो कि किसान घराने से मुझे पता है कि गन्ने की पैदावार कितनी आती है। अगर आपके पास गन्ने की पैदावार 600 मन एवरेज आ रही है फी एकड़ तो वो 1200 मन एवरेज पैदावार दे रहा है। मैंने खुद देखा, मेरे पास पिक्चर्स हैं। उस तरह का कमाल मैंने कहीं भी खड़ा नहीं देखा। मैं उनके एग्री के हमारे पास 4-5 शुगर मिले हैं जिनको हम लोन देते हैं उनके मेरे ग्रोवर्स को, तो हम अक्सर विजिट करते रहते हैं। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ जदीद मशीनरी के इस्तेमाल की वजह से वो इतना अच्छा काम को रन कर रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे किसान भाई भी इस जदीद तरीका शिकारी के तरीकों पर आएँ, रवायती तरीकों से हट के जदीद तरीकों पर आएँ और अपनी फी एकड़ पैदावार बढ़ाएँ और उसके नतीजे में इंशाल्लाह हमारा मुल्क और कौम तरक्की करेगा। आपके दिल में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ पूछ सकते हैं। मेरा नाम अब्दुल जब्बार है, मैं एग्री हेड हूँ। मेरे साथ ये रसूल हुसैन साहब हैं, ये हमारे एफ ओ हैं। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का रीजनल यूनिवर्सिटी चौक से थोड़ा सा पहले 3 स्टोरी बिल्डिंग है, वहाँ पे हम बैठते हैं। आप लोग फोन नंबर नोट करना चाहे वैसे मेरा नंबर इस मॉडल के ऊपर भी लिखा हुआ है, आप फोन नंबर आप नोट कर लें 0300 867 ये मेरा फोन नंबर है अब्दुल जब्बार के नाम से। आपको ट्रैक्टर के लिए, डेयरी के लिए, पोल्ट्री के लिए, फिशरीज के लिए, खाद बीज के लिए, किसी भी तरह का कोई भी कर्जा, इम्प्लीमेंट्स के लिए कोई ट्राली खरीदनी है, आपने रोटावेटर खरीदना है, कोई और मशीनरी खरीदनी है, किसी भी तरह का कर्जा चाहिए तो हम इंशाल्लाह हाजिर हैं। आपको 24/7 इंशाल्लाह हम सर्विस देंगे और कोशिश होगी कि आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना आए। ठीक है, कोई क्वेश्चन है? माइक वहाँ अवेलेबल है क्वेश्चन आंसर्स के लिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मैं इंतजामिया का वहाँ से अगेन मशहूर हूँ जिन्होंने हमें ये मौका फराहम किया कि हम अपने किसान भाइयों के साथ को एड्रेस कर सकें और नेशनल बैंक की बात को इंट्रोड्यूस कर सकें। थैंक यू वेरी मच।